Okay, beta ji. So question number 11 we are starting up with, and today Arav is not present. We are recording for Arav. Okay. Chalo. The question is the top of a broken tree. The top of a broken tree touches the ground at a distance of 12 meters from its base. So let me make one tree. I'll only make a single line tree. So that's a tree that I have like this. And the tree broke from somewhere in the middle. Now when it broke from here, it fell off like this. Okay. And understood or not? So they are saying the top of a broken tree touches the ground at a distance of 12 meters from its base. From its base, the distance of its top is 12 meters. Right or not? If the tree is broken at a height of 5 meters, if this height is 5 meters from where it broke, from the ground, then the actual height of the tree means this 5 plus this portion, which fell off like this. So in all that means you need to calculate, you need to find out the length of this side. How should I say the answer? If you know the length of this side, you add up with 5 to make it the complete tree ka height. You'll get to know that, right or not? Yes, ma'am. Okay, tell me, Priyansh, how will you do this? Ma'am, we'll take x as the value of the actual height, ma'am. And ma'am, as we know the Pura x should I take? Or only the one that fell off? Ma'am, the triangle one which is not fell off. Yes, ma'am. So, ma'am, after that, ma'am, we'll add 12 plus 5, which will give us 17. 17 is the answer. The value for x is 17. ऐसे you add anything to make it the answer, है ना? That is, देखो बेटा, a tree grows at a right angle to the ground mostly, है ना? So this is 90 degree का angle here. When the tree fell off, broke from height of 5 meters and it fell off like this. This is the right angle triangle that is formed here. Understood or not? And now when you know two dimensions, two sides of right angle triangle, so you can easily calculate this one. How? Do you remember Pythagoras theorem? What is Pythagoras property? Right, Pythagoras theorem or property. What is that? Base का square plus perpendicular का square equals to hypotenuse का square. तो base का square is 12 का square plus perpendicular का square is 5 का square and hypotenuse का square you need to find. है ना? 12 का square is 144, 5 का square is 25 equals to h square. तो h क्या हो जाएगा यहाँ पे? This is 169. आपको पता है कि 169 भी किसी नंबर का स्क्वायर है, मालूम है क्या ये बात किसी को? कैसे सॉल्व करते हैं इसको, मालूम है किसी को? h square is equals to 169 को कैसे सॉल्व करना है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कैसे करते हैं रेयांश? Ma'am. Ma'am, 1 and then 6, 9. Ma'am, 169 13 का स्क्वायर है ये तो नहीं कर पाओगे बेटा, वो प्राइम नंबर का स्क्वायर है. 196 सोच रही थी मैं उसे. दैट इज h स्क्वायर इज 13 का स्क्वायर बेटा. 13 is 169. Ma'am, did we do inequality property last class? Riyansh, are you mentally here where I am explaining? When I am explaining Pythagoras theorem, where are you going in inequality property? That means you are mentally not present in the class. And if you don't focus on screen, you have opened some other tab on your screen. If you don't focus on screen here, you won't ever get good marks in life. Bring yourself back to my screen and focus here. So h square is 13 का square, square से square is cancel, h is 13. So what is this? This length is 13. But they have not asked you the height of what has fallen down.
They've asked you the height of the complete tree. Complete tree is 5 plus 13. Mom, 18. 18 is the total height. Understood or not? Ma'am, but why 5 plus 13? Why not 12? बेटा जब ट्री गिर के पूरा थोड़ी नीचे लेट गया, ट्री टूटा, यहाँ से टूट के इधर नीचे गिरा है ना, तो इन दो हाइट्स को ही तो प्लस करके टोटल ट्री का लेंथ बताओगे। Okay. Mom, एक can बार you और समझे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहा था एक ट्री है, वो ट्री बीच में से टूटकर नीचे गिर गई और जहां उसका टिप टच हुआ वो बेस से 12 मीटर्स दूर था। दिस इज 12 मीटर्स अवे। नाउ दे आर आस्किंग टोटल ट्री का हाइट बताओ इफ द ट्री हैज ब्रोकन फ्रॉम द हाइट ऑफ 5 मीटर्स। तो अभी क्या करेंगे, इसको पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करेंगे। 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल्स टू h का स्क्वायर। सॉल्व किया, ये 169 आया h स्क्वायर। हमें पता है 169 इज 13 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, h इज 13। तो हाइपोटेन्यूज 13 आया, लेकिन उन्होंने हमसे पूरी ट्री का हाइट पूछा था, तो 5 प्लस 13 टोटल 18 मीटर्स इज द हाइट ऑफ द ट्री। अंडरस्टूड बेटा जी और नॉट? मैम मुझे बस एक ही डाउट था पाइथागोरस थ्योरम में मैम, हमें ये आंसर कैसे मिला? बेटा 5 का स्क्वायर 25 होता है और 12 का स्क्वायर 144, दोनों को ऐड करोगे 169 है। तो मैम इसलिए टेबल्स होनी, राइट? 12 का स्क्वायर 2। ये ना स्क्वायर मैं लिख कर दे देती हूँ आपको, इनको नोट कर लो। 1 का स्क्वायर इज 1 ओनली, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर इज 16, 5 स्क्वायर is 25, 6 square is 36, 7 square is 49, 8 square is 64, 9 square is 81, 10 square is 100. मैम इज देयर अ way to calculate squares? बेटा ट्रिक्स है और चैनल पे है, आप एक्सपर्टाइज कर सकते हो। 1 to 30 के स्क्वायर्स वहाँ वीडियोस ऑलरेडी शेयर है। 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 312, 18 का स्क्वायर मैम 324 324, मुझे याद नहीं आ रहा। 19 का स्क्वायर इज 381 एंड 20 का स्क्वायर इज 400। इसका कंफर्म करना है, इसका 324 है। ये लिस्ट क्रिएट कर लो और ट्रिक भी है इसको याद करने की, बहुत आसान। पता है क्या है, 11 में 1 ऐड करो इस 12 है ना, तो नंबर में लास्ट डिजिट ऐड करोगे 12 आ जाएगा, और लास्ट 1 का स्क्वायर इज 1 यहाँ पर लिख दो। ऐसे इसकी ट्रिक भी है, जब बच्चों को शुरू में इंट्रोड्यूस करते हैं तो ऐसे भी कर लेते हैं। जैसे 12 + 2, पूरे नंबर में लास्ट डिजिट ऐड करो, 12 + 2 इज 14, तो 14 लिखा, एंड लास्ट में 2 का स्क्वायर जो है वो लिखो, 2 का स्क्वायर इज 4। इसी तरीके से 13 में 3 ऐड करो 16, और 3 का स्क्वायर इज 9। 14 में 4 ऐड करो इज 18, और 4 का स्क्वायर इज 16, तो 16 ऐसे लिखेंगे, पूरा 2 डिजिट नहीं लिखेंगे, तो इट विल बी 196 देन। आई बात समझ में कि नहीं आई? Ma'am, like, in the sense, can we like solve the squares? क्या प्रियांश? Can we solve the squares? हाँ, तो दैट विल कंज्यूम मोर टाइम। कर लो सॉल्व, 16 × 16 करके देख लो, 256 ही आएगा। पर ये याद करना चाहिए बेटू। मैम हाँ जी बेटा। मैम 19 का स्क्वायर 361 होना चाहिए। मैंने गड़बड़ किया क्या? यस मैम। चेक करूं। तो बेसिकली मैम किसी चीज का स्क्वायर निकालने के लिए उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है।
So 11 का स्क्वायर होगा 11 मल्टीप्लाइड बाय 11. अंडरस्टूड. क्या कह रहा है बच्चे? फॉर एग्जाम्पल 11 का स्क्वायर निकालना है तो 11 मल्टीप्लाइड बाय 11 होगा और स्क्वायर निकल जाएगा, राइट? हाँ, जिसका भी स्क्वायर निकालना है उसी नंबर को उससे मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट. बट दैट विल वेस्ट लॉट ऑफ टाइम, वो तो याद होना ही चाहिए. मैम इन केस What इफ द is स्क्वायर इज याद? बिग. 361 है बेटा, राइट. इन दोनों में मैंने गड़बड़ किया, 18 और 19 के स्क्वायर्स में. बहुत टाइम हो जाता है कराए हुए तो हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं. दैट्स 324 एंड 361. अभी ट्रिक्स पे फोकस नहीं करो, बेसिक 1 to 20 तो सबको याद होना ही चाहिए. ट्रिक्स आगे की भी हैं, 20 to 30 की ट्रिक्स हैं. अगर 20 to 30 की 30 तक याद हो गया, मतलब अगर आपको 2 to 30 तक के स्क्वायर्स याद है, तो फिर आप बाकी सब नंबर्स के स्क्वायर जो है बहुत इजीली ओरली निकाल सकते हो वैदिक मैथ्स ट्रिक से. मैम जैसे पाइथागोरस थ्योरम में 5 का स्क्वायर निकालते हैं, 5 स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर. मैम तो स्क्वायर निकालने के बाद प्लस ही करना है, राइट? पहले स्क्वायर मल्टीप्लाई करो. 5 का स्क्वायर मीन्स 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो. मैम डन. फॉर एग्जाम्पल 25. we got 25, ma'am. Then like 12 ka square is like, ma'am, 144. So we multiplied 25 plus 144, right? No, we'll add then 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर इज 25 प्लस 12 का स्क्वायर इज 144. Understood, ma'am. स्क्वायर निकाल कर यू आर एडिंग. Okay, Mom, 196. क्या बेटा? 14 का स्क्वायर इज 196. ठीक है, Yes, ma'am. हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व. एक और क्वेश्चन पूछूं ऐसा ही आप लोगों से? Mom, 1 second, ma'am. yes, ma'am. Ma'am, I'm on 15 मैं square. आपसे पूछ रही हूँ, एक काइट है विच इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 5 meter above the ground. ठीक है. If the person flying it is standing at a distance of 7 meters from it, tell us कि वो जो string है वो कितना long होगा. काइट का जो string है वो कितना long होगा. 5 meter की हाइट पे काइट उड़ रही है. The person who is flying it is standing at a height of at a distance of 7 meters from the point just under the kite, and then you have to find the length of the string. Ma'am, कितना लंबा string होगा can इसमें? you just write the equation of that? Can you just write the formula for the Pythagoras theorem? That is b square plus p square equals to h square. b and p को आप किसी को भी कुछ भी कह सकते हो. B square plus ये B square. legs of right angle triangle, इसमें किसी को भी b कह लो, किसी को भी p कह लो, doesn't matter. लेकिन हाइपोटेन्यूज हमेशा 90 डिग्री के ऑपोजिट वाली साइड ही होती है. And always remember hypotenuse is the longest side. जल्दी से फाइंड करो और आंसर बताओ. ओके बेटा जी, तो अभी तो मैंने रैंडम नंबर्स पिक करके दिया था, मैंने वो नहीं दिया ना प्रॉपर सोच के पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाकर क्वेश्चन नहीं दिया आपको. पर तो ऐसा आ जाए अगर h स्क्वायर इज इक्वल टू 74 विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. परफेक्ट स्क्वायर वो नंबर्स होते हैं जो आंसर से हमने जो स्क्वायर लिस्ट बनाई ना वो परफेक्ट स्क्वायर थे. जैसे 400, 361, 324, 289, 256, 225, ये सब जो स्क्वायर्स निकाले थे हमने 20, 19, 18, 17 सब के, ये नंबर्स जो आंसर्स थे वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं. अब ये 74 उसमें बीच में नहीं था. कैसे नहीं था? देखो 6 का स्क्वायर इज 36, 7 का स्क्वायर इज 49, 8 का स्क्वायर इज 64, 9 का स्क्वायर इज 81. देखो 64 और 81 के बीच में कहीं 74 है ही नहीं, तो 74 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. तो जब भी आपको ऐसा मिले कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो इस स्क्वायर को आप दूसरी साइड जाकर स्क्वायर रूट बना देते हैं.
और 74, दैट्स इट। बस ऐसे छोड़ दो, दैट्स द लास्ट थिंग दैट यू कैन डू अभी 7th क्लास में। इसको सॉल्व करना 8th और 9th में सीखेंगे, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ रूट 74 इज द आंसर। इसकी भी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, पर वो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है बच्चे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन करें फिर। Yes, ma'am. प्रियांश समझ में आया इसमें कोई प्रॉब्लम? सब समझ में आया, कैसे ऐड, कौन सा क्या मल्टीप्लाई हुआ, सब समझ में आ Yes, रहा है? कोई ma'am. डाउट है यहाँ पे तो पूछो। No, मैम बस अगर परफेक्ट स्क्वायर होता तो आंसर क्या होता? जैसे मान लो यहाँ पर होता 74 की जगह 64 होता है, तो रूट 64 का आंसर जो है वो, आप रूट 64 की जगह 8 स्क्वायर लिख देते। Yes, ma'am. 8 स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, H8 आ जाता। अगर मैम इम्परफेक्ट है तो आंसर 74 ही होगा। इम्परफेक्ट Square. स्क्वायर कोई वर्ड नहीं होता, जो हाँ जो नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स है तो उसको आप रूट करके रख देते हो बस, Understood. ठीक है। चले अभी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। A triangle formed by AB 5 centimeter, Triangle. ABC ट्राइंगल है, AB 5, BC 8 एंड AC 4 सेंटीमीटर इज एन, किस तरीके का ट्राइंगल है ये? स्केलीन ट्राइंगल है, स्केलीन और राइट है, आइसोसिलीज है, आइसोसिलीज राइट है, कैसे पता चलेगा? आइसोसिलीज तो हो ही नहीं सकता, Yes, ma'am. आइसोसिलीज के लिए तो दो साइड इक्वल चाहिए, है ना। Yes, ma'am. स्केलीन ट्राइंगल है या स्केलीन राइट एंगल ट्राइंगल है, ये दोनों ऑप्शंस में से हमें डिसाइड करना है। अब देखो, अगर स्केलीन राइट है तो हम क्या, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम फिट होना चाहिए। मतलब अच्छा, मैंने आपको क्या बताया, लॉन्गेस्ट साइड इज द हाइपोटेन्यूज ऑलवेज। लॉन्गेस्ट साइड क्या होता है? हाइपोटेन्यूज होता है। तो इसका मतलब ये डायग्राम कैसे बनेगा, इसको थोड़ा सा करेक्ट करते हैं, लॉजिकली करेक्ट बनाएंगे इसको। Ma'am, can't we just make a right angle and like mark it A, B, C? बेटा अगर वो राइट होगा तभी तो ना, यही तो देखना है हमें, यही समझा रही Ma'am, हूँ। you देखो ध्यान always से, 5 और 4 अगर ये राइट एंगल होगा तो पाइथागोरस थ्योरम के ऑपोजिट जो साइड है 8 वो लॉन्गेस्ट होगी। आई बात समझ में कि नहीं आई? मतलब लॉन्गेस्ट साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होनी चाहिए बेटा, दैट इज वन फैक्ट यू शुड नो, ठीक है। तो अब अगर इसमें पाइथागोरस थ्योरम फिट हो गई, पाइथागोरस थ्योरम क्या है? बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल्स टू एच का स्क्वायर, है ना बेटा। तो अभी बी स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, कुछ भी, 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर में 8 स्क्वायर, राइट बेटा। अगर ये प्रूव हो गया LHS इक्वल्स टू RHS तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, नहीं तो नहीं। देखो 4 का स्क्वायर इज 16 प्लस 5 का स्क्वायर इज 25 इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर इज 64। आ रहा है क्या ये दोनों इक्वल? नहीं आ रहे हैं बेटा। 25 प्लस 16 कैन नेवर बी क्लोजर टू 60। देखो 16 और 25 ऐड करके देखो, 41 आंसर है। 41 इज नॉट इक्वल्स टू 64 बेटा। तो ये पाइथागोरस थ्योरम को फिट इन नहीं कर रहा है, इसीलिए स्केलीन एज वेल एज राइट एंगल भी गलत ऑप्शन है, तो इट्स जस्ट अ स्केलीन Ma'am, ट्रायंगल। but Pythagoras triangle का आंसर राइट एंगल ही होता है ऑलमोस्ट हमेशा, राइट? क्या बेटा? मैम पाइथागोरस एंगल का जो आंसर होता है वो हमेशा व्हाट यू कॉल राइट एंगल होता है, राइट? बेटा हाँ, पाइथागोरस थ्योरम लगती ही राइट एंगल ट्रायंगल पे है बच्चे। ओके मैम। तो एक्चुअली आपको इस क्वेश्चन के थ्रू ये सिखाया जा रहा है कि आप कैसे चेक करेंगे कि ये जो गिवन ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं, राइट बच्चे। एक और करें ऐसा ही क्वेश्चन।
Yes, ma'am. सिमिलर लाइन पे प्रैक्टिस करें. Yes. Ma'am, 1 second. ओके बेटा. So, ma'am, we had a copy. I mean, ओके तो अब हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं इसी सेम लाइन पे प्रैक्टिस. मैं आपको कह रही हूँ एक ट्राइंगल है जिसकी साइज है 3, 4 और 5. ठीक है. एंड आई एम आस्किंग यू कि इन चारों में से बताओ ऑप्शंस क्या है. वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आइसोसेलेस राइट एंगल्ड है, स्केलीन है या स्केलीन राइट है. ma'am, it can't be isosceles. ऑफ कोर्स इट कांट बी आइसोसेलेस. तो ये दोनों कैटेगरीज तो गई है ना. We have scalene and right angle triangles. हम्म. Wait, ma'am. So, but always the biggest value is the h, right? Yes, Pythagoras theorem में h is always the longest side. E2 square, O2 square equals to 5 square. Ma'am, how to solve this 13th question? Ma'am, it's a scalene as well as a right triangle. Very good, Priyansh. Very good. Very good. Ma'am, but my writing is right? Like you have to solve like this only, but I just forgot one writing part now. Excuse me, ma'am. Yes, ma'am, it's a scalene as well as a right angle. एक मिनट लेकिन प्रियांश ने क्या किया है ये. हाँ, मैंने एक स्टेप गलत लिखा है मैम. पहला मुझे कुछ लिखना था मैम. वो b स्क्वायर प्लस 2 p स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर. अरे वो तो ठीक है लेकिन 5 के स्क्वायर में आंसर 64 कैसा लिखा. 5 का स्क्वायर तो 25 होता है. मैम इट्स 8 का स्क्वायर मैम. 8. ओके मैम, वेट. Why 8 का मैम स्क्वायर. मैंने तो 3 5 का स्क्वायर निकालना था. वेट. 25. यस मैम. 3, 4 और 5 दिया. प्रियांश कुछ भी मत कर बेटा. 2 5 का स्क्वायर मैम मुझे क्योंकि दैट इज p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इक्वल्स टू h का स्क्वायर. Yes, ma'am. So, ma'am, now I have one more doubt. Ma'am, if it number is, for example, you got 20, 25 from both sides, I understood it was right, ma'am. What if it was 20, like some 64 only? So, ma'am, till then would it be equal? It would be right angle. बेटा जब तक इन दोनों साइड्स का आंसर इक्वल नहीं हो जाता तब तक दैट इज नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल. अगर आंसर इक्वल है देन ओनली इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, अदरवाइज नॉट. Okay, ma'am. वेरी गुड आर्या. वेरी गुड बेटा. गुड. नाइस. तो चले आगे. ओके बेटा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं. तो इसका कंक्लूजन क्या निकला है. जो मैंने क्वेश्चन पूछा उसका आंसर इज कि स्केलीन एज वेल एज राइट एंगल ट्रायंगल है ना. One, two, three. चले अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करें. Yes, ma'am. क्वेश्चन नंबर 13 वी आर सॉल्विंग नाउ. I'm asking question number 11 only. 2 trees 7 meter and 4 meter high stand upright on a ground. दो ट्रीज हैं ग्राउंड के
ऊपर अपराइट एकदम सीधे खड़े हैं 3 to 4 meter and 7 meter. If their bases roots are 4 meter apart, दोनों के bases are 4 meter apart, then the distance between their tops, so उनके बीच का tops का distance आपको बताना है, means you should find this. ये दोनों के tops का distance, this you have to find. Understood or not? क्या निकालना है, समझ में आया? Yes, ma'am. Ma'am, but that's not a triangle. That can be a triangle if you draw one small line. कौन सा वाला? ये देखो, Ma'am, a अभी diagonal. देखो, अभी देखो, ये 4 मीटर है तो ये भी 4 मीटर होगा ना, है ना, क्योंकि सीधी खड़े हैं ना ट्रीज तो अभी इफ दिस इज 4 मीटर, ये पूरा 4 है तो इधर भी 4 होगा बेटा, तो ये ऊपर वाला 3 रह जाएगा ना 7 में से, टोटल लेंथ 7 में से यहाँ तक का 4 है, तो ऊपर वाला 3 रह गया ना बेटा, क्लियर है ये बात कि नहीं? ऊपर वाला 3 Can't we just write x equals to 7 minus 4 and 7 minus 4 is 3? हाँ, वैसा वैसा आप बताओगे, आप इसको नाम दोगे ट्राइंगल एबीसी, तो आप लिखोगे इन ट्राइंगल एबीसी AC is equals to 3 meters, BC is equals to 4 meters, right? Yes, ma'am. अब आप क्या करेंगे, ये ब्लैक लाइन निकालने के लिए कोई बताएगा मुझे अब क्या कर सकता है यहाँ पे? कोई सोच पा रहा है क्या ब्लैक लाइन के लिए क्या करोगे? Ma'am, we can put the black line for us 4 meters. No, not 4. प्रियांश मैथ्स लगानी है तो कर नहीं बेटा, Ma'am, Pythagoras theorem. राइट, पाइथागोरस थ्योरम। वाई? क्योंकि ट्री स्टैंडिंग अपराइट तो यहाँ बीच में से भी थोड़ा मुड़ जाएगा, ट्री अपराइट है तो थोड़ी इसका मतलब ऐसा है कि ऐसे किधर होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। ट्री सीधा खड़ा है तो कैसा भी बिल्कुल सीधा ही होगा ना ट्री, तो यहाँ पे भी बीच में 90 डिग्री का एंगल ही बनेगा बेस लाइन के साथ। Yes, तो ma'am. पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, इट विल बी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच का स्क्वायर, यहाँ पर पी स्क्वायर 3 का स्क्वायर पुट कर देते हैं, बेस का स्क्वायर 4 स्क्वायर कर देते हैं, एंड एच स्क्वायर यू हैव टू फाइंड, एच यू हैव टू फाइंड एक्चुअली। 3 का स्क्वायर इज 9, 4 का स्क्वायर इज 16 इक्वल्स टू एच स्क्वायर, तो 9 plus 16 is 25, 25 equals to h square। h की वैल्यू क्या आई, कौन बताएगा मुझे? h स्क्वायर की वैल्यू 25 आई है, h की वैल्यू क्या होगी? 5. आर्य बताओ। मैम h स्क्वायर इज 25 आ रहा है, h की वैल्यू क्या होगी बेटा? मैम 5 आर्य? How? यस, h स्क्वायर इक्वल्स टू 25, 5 का स्क्वायर होता है ना, How, ma'am? Okay, understood, ma'am, understood. तो 25 की जगह 5 स्क्वायर लिख दिया, अभी तो टेबल में 5। Yes, ma'am. So, ma'am, first we will say, ma'am, as x value is 7 minus 4, ma'am. Right? प्रियांश बेटा ये ना आप डायग्राम में ही शो कर दो तब भी चलेगा, आपके लेवल पे आपको ये करने की दिखाने की जरूरत नहीं है, ये 3 कैसे आया, ये 4 कैसे आया। Yes. अभी के लिए आप इतना भी दिखा दो डायग्राम में कि ये 4 है और ये 7 टोटल लिखा हुआ है, तो नीचे वाला 4 एंड ऊपर वाला 3, दैट इज गुड इनफ। Okay. ये एक्चुअली क्या है पता है, मैं आपको बताऊं, देखो ध्यान से, ये ब्लू लाइन है ना, जो ये जो ब्लू लाइन है, ये यहाँ पे ले जाएंगे पूरा सेम है ना, इसको पुशिंग दी वॉल का कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो जब आप इस वॉल को पुश करके इधर लेके जाओगे तो ये वही तो रहने वाला, डायमेंशन चेंज थोड़ी हो जाएगा, राइट और नॉट? Yes, ma'am. Ma'am, हाँ जी बेटा। ma'am, I think 14th one, can we solve it? I think I can solve it. 14th you want to try by yourself, and an isosceles triangle, oh the base angle is 40 degree, then the triangle is, ट्राई करो खुद से, ये याद रखना आइसोसेलेस ट्रायंगल के बेस एंगल्स भी इक्वल होते हैं, प्रॉपर्टी को
यूज कर, चलो इसको डिस्कस करते हैं। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ईच ऑफ द बेस एंगल इज 40। तो अगर मैंने ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ड्रॉ किया है, बेस एंगल्स पहली बात तो याद रखना आइसोसेलेस ट्राइंगल के इक्वल होते हैं। ये 40 तो ये भी 40 हो गया, राइट बेटा। अच्छा, अब आपको एंगल सम प्रॉपर्टी पता है ना कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है ना। जब भी ये प्रॉपर्टी लिखते हो तो ब्रैकेट में लिखा करो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, इस तरीके से। अब आपको पता है कि एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज 180, तो ए को ऐसे ही लिख दो, एंगल ए प्लस बी और सी की वैल्यू 40 ईच पुट कर दो। दोनों की वैल्यू 40 क्यों पुट कर दी? क्वेश्चन में तो हमें एक ही कहा था। Ma'am, तो because isosceles triangles, two sides are equal now. तो टू साइड्स इक्वल होता है और टू बेस एंगल्स भी इक्वल होता है, इक्वल्स टू 180। तो एंगल ए इज इक्वल्स टू, ये 80 माइनस हो जाएगा उधर जाके, तो इक्वल्स टू 100 डिग्रीज। अब एंगल ए ये ऊपर वाला 100 डिग्रीज हो गया बेटा। अब आपको इन तीनों एंगल्स को देखकर एनालाइज करना है कि कौन से टाइप का ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल है, ऑब्ट्यूज है, एक्यूट है या आइसोसेलेस राइट एंगल? I'm obtuse. ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, द आंसर इज, यही आया है सबका आंसर। Ma'am, फॉर्मेट मैंने सेम किया है बट वो एंगल्स हम प्रॉपर्टी मेंशन करना भूल गए थे मैम। हाँ भी ठीक है, आ गया ये सबको समझ में, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? Ma'am, I've Ma'am, done like this, is ma'am, it the right? 15th one, ma'am, the 15th one is obvious. Can we just take the answer? ओके, गो अहेड। Ma'am, ma'am, but like, ma'am, can I just write the answer? Like, answer is C as equilateral triangles, angles are equal. Are 60 degrees, sorry. हाँ 60 डिग्री ईच। वैसे तो आपको ये, अगर ये एमसीक्यू में आ जाए फिर तो प्रूव नहीं करना है बेटा। अगर ये एमसीक्यू में नहीं आया, ऑप्शंस के बिना आया, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ए बी सी में तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं, तीनों एक्स और एक्स और एक्स हो जाएंगे, तीनों को ऐड करके 180 डिग्री के इक्वल पुट करो, एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 3x इज इक्वल टू 180, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, 180/3 विच इज व्हाट 60 डिग्री। अगर आपको ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में नहीं आया तो दिस इज हाउ यू प्रूव इट, एवरी एंगल टू बी 60 डिग्री, तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। Okay, ma'am. Ma'am, Use face recognition. this equal what do you call it? Isosceles if two angles. Ma'am, isn't it isosceles? Ma'am, isn't this angle isosceles for the 15th one? 15th वन, अरे बेटा वो कह रहे हैं इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। देखो अगर दो 60 डिग्री है, इसको एक मिनट रुको मैं ऐसे बताती हूँ आपको। अगर दो ट्रायंगल्स, दो एंगल्स जो है वो 60 डिग्री है, तो दिस इज 60, दिस इज 60, Yes, ma'am. दिस इज थर्ड वन इज एक्स, राइट। तो अब यहाँ पर क्या होगा, अब आप इसे 60 प्लस एक्स प्लस 60 इक्वल्स टू 180। Angle sum property. तो x राइट 60 प्लस x प्लस 180 इक्वल्स 120 इक्वल्स टू 180। Yes. नाउ अब ये 120 आप ट्रांसपोज करके उधर सब्ट्रैक्ट करोगे, 180 माइनस 120 इज 60 डिग्री, तो ये भी एक 60 डिग्री हो गया। तो द आंसर इज 60 डिग्री, इसका मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल। So, ma'am, in exam we can also prove like this. हाँ Instead, वही तो कह रही हूँ, अगर ये आपको 1 मार्कर में एमसीक्यू की तरह नहीं आता तो दिस इज हाउ यू डू इट 2 मार्क्स के लिए। Okay, ma'am. ओके ओके, तो हम 16th डिस्कस कर रहे हैं एक बार। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल whose length is 60, एक रेक्टेंगल है। जब भी आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं आपको रफ डायग्राम बनाना होता है, अदरवाइज कुछ समझ में नहीं आएगा। तो रफ डायग्राम बनाकर चीजें उसमें मार्क करो। पेरीमीटर ऑफ अ डायगोनल
whose length is 60, जिसकी लेंथ 60 है and diagonal is 61 और डायगोनल 61 है, तो उसका पेरीमीटर बताओ क्या होगा। सबसे पहले दिमाग में ऐसा सोचोगे कि पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला रेक्टेंगल का होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। इसमें से क्वेश्चन में इसके इंग्रेडिएंट में से लेंथ और ब्रेथ अननोन है, जिसमें से लेंथ मुझे बताई गई है, ब्रेथ अननोन है, Mom, what is सिर्फ it? ब्रेथ अननोन। हाँ, Diagonal, what is it? Diagonal. डायगोनल जो ऑपोजिट वर्टिसेस को साइड ज्वाइन करती है बेटा, उसको बोलते हैं डायगोनल। ठीक है, तो ये वाली जो है ऑपोजिट दो वर्टिसेस, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन है डायगोनल। राइट बेटा, आ गई बात समझ में। तो दिस साइड इज 60, दिस इज 61, ये साइड हमको निकालनी है। अगर हमें ये साइड पता लग जाती है ब्रेथ, अगर ये ब्रेथ हमें पता लग जाती है बेटा, तो फिर हम इस फॉर्मूला में 2 लेंथ प्लस ब्रेथ को कैलकुलेट कर सकते हैं ना। अब हमें पता है कि रेक्टेंगल में यहाँ 90 डिग्री का एंगल होता है, ये बात हमने बचपन में पढ़ी थी। तो इसका मतलब यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है, ये ट्राइंगल बन गया राइट एंगल ट्राइंगल, है ना। तो इसका मतलब इसको ऐसे लिखा जा सकता है, इसको बी लिख रही हूं मैं, ये बी है। ये बी, ओके। तो अब मैं लिख रही हूँ 60 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर या डायगोनल का स्क्वायर। 60 का स्क्वायर देखो, 6 का स्क्वायर क्या होता है, 6 का स्क्वायर इज 36, राइट, है ना बेटा। एंड डबल जीरो हो जाएगा। आप इसे कैसे समझो, 60 का स्क्वायर निकालना है, मतलब 60 इंटू 60 करना है बेटा। तो 6 इंटू 6 करो 36, और ये 2 0 डबल 0, 3600, राइट बेटा जी और नॉट। Mom did not understand. 60 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं 60 multiplied by 60. बेटा, 60 मल्टीप्लाई बाय 60 में 2 6 इंटू 6 कर लो ना, 6 6 6 आर इज 36, और 2 zeros पीछे पुट कर दिया आपने। This one. Then value of B. ये आ गया 3600, ये तो अभी मैंने सिर्फ वो लिखा है, 60 का स्क्वायर, है ना। अभी प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 61 का स्क्वायर यहाँ पर, क्योंकि ये इस बार हाइपोटेन्यूज गिवन है आपको। कैसे, राइट एंगल की ऑपोजिट साइड है ना, ये राइट एंगल की ऑपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज होती है ना, यहाँ पे जो डायगोनल है वही तो है, राइट बेटा। तो अब 61 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 61 इंटू 61 से। अब 61 इंटू 61 ऐसे ही जनरली कर लो आप, 61 into 61, 1 1s are 6 and 6 1s are 6, 6 6 are 36। तो ये क्या हो गया, 3 6 3 7 3 7 2 6। थ्री सेवन 2 6, राइट। तो 3 7 2 6। Wait, ma'am, wait. अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, क्या बेटा, Good afternoon, ma'am. Good evening, ma'am. रुको बच्चा रुको, अभी शुरू करेंगे आपकी क्लास। आप ही देखो, ये कुछ समझ में आया क्या चल रहा है यहाँ पे, नहीं आ रहा समझ में। Ma'am, Priyansh, I got 61 square is 3721. मैंने क्या किया, हाँ राइट। Ma'am, it was 117. Wait, ma'am. I think I got it. देखो, I got it, ma'am. when Ma'am, you just minus it, right? sometimes, हाँ sometimes you don't feel
फ्रेश इनफ टू डू ऑल दैट। तो मैं 1 1 जार भी गलत कर रही हूँ ना। 1 1 जार इज 1, 1 6 जार इज 6, 6 1 जार इज 6 एंड 6 6 जार इज 32। कोई मुझे देखकर क्या कहेगा, मैम को 1 1 जार भी नहीं आता। डिसअपॉइंटमेंट है ना। 6 6 12 7 3 7 2 1। ओके। अच्छा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए, रुको पहले एक बार और समझते हैं Ma'am, चीज। we have to multiply h square by p square, right? हाँ रुको एक बार, रुको मैं पहले क्या कर रही हूँ, पहले एच स्क्वायर प्लस p square. एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। इनमें वैल्यूज पुट करें, एच स्क्वायर की वैल्यू 61 का स्क्वायर, Yes, ma'am. पी स्क्वायर की वैल्यू हमें निकालनी है और बी स्क्वायर की वैल्यू, या फिर किसी में भी पी और बी में किसी में भी वैल्यू पुट कर सकते हो 60 का स्क्वायर। अब ऐसा करते हैं, इसको ट्रांसपोज करके उधर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। हम लोगों ने लीनियर इक्वेशंस तो सीखी है ना। 61 का स्क्वायर माइनस 60 का स्क्वायर, सिंपल इक्वेशन सीख चुके हैं ना। पता है ना ये चीज उधर ट्रांसफर होगी तो पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगी, है ना। तो अब 61 का स्क्वायर इज 3721 माइनस 3600 इक्वल्स टू पी स्क्वायर। आंसर क्या आ रहा है सब्ट्रैक्ट करके, 121 इक्वल्स Ma'am, टू that पी is स्क्वायर। 122 है. 3721 में से 3600 माइनस करके, ये 1 में से 0 1, 2 में से 0 2, 7 में से 6 1, 121 आ रहा है। Yes, ma'am. अभी 121 इक्वल्स टू पी स्क्वायर, 121 इज 11 का स्क्वायर, 11 स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर काट दोगे, परपेंडिकुलर की वैल्यू मतलब स्टैंडिंग लाइन की वैल्यू आ गई आपके पास 11। And how अब पेरीमीटर फाइंड, हाँ Ma'am, is it okay if I write root of 121 is equal to p, p is equal to 11? नहीं बेटू, पी का वैल्यू 121 रूट 11 क्या आपको पता नहीं है 11 का स्क्वायर 121 होता है। ये सब तो बेसिक चीज है, ये तो याद करनी ही पड़ेगी बेटा। Okay, ma'am. Ma'am, like how did you get 11 here? बेटू अभी तो याद कराया, 11 का स्क्वायर 121 होता है। Oh, yes, yes, yes. Ma'am, but इसमें ऑप्शन दिया ही नहीं है. Thank you. Ma'am, but इसमें ऑप्शन दिया ही नहीं है 121 का. बेटा वो तो अभी पी निकली है, अभी पेरीमीटर थोड़ी निकला है, अभी तो आपको दोनों लेंथ ब्रेथ पता चली है। Okay, okay, okay. रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला तो क्या होता है, 2l प्लस बी। Ma'am, I have a small doubt in 17. Ma'am, is there any like property or rule of obtuse angles, angle triangles? Ma'am, 17 is basically addition and subtraction. वो पढ़ोगे बेटा जब 10th में ट्रिको पढ़ोगे ना, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के बारे में, वहां पे आएगा। Ma'am, ठीक है। ma'am, in 17, PQ is in obtuse angle अरे यार triangle. एक मिनट में बेटा ये क्वेश्चन सॉल्व कर दूं, एक मिनट रुक जाओ। 2l प्लस बी में चॉइस ऑफ 60 प्लस बी क्या है 11, Yes, ma'am. so this is 71 times 2 which is what 142। 142 ऑप्शन है कि नहीं? How? Wait. Understood, ma'am. So, ma'am, we found out the breadth as 11 square, right? ब्रेथ as 11 बेटा। Yes, ma'am. Ma'am, but I have just one doubt, ma'am. So, ma'am, isn't should be like this? We convert these into square roots and like. नहीं बेटा वाई, ये तो स्क्वायर, यहाँ पे लेंथ तो 60 और 11 है, वो तो आपने फॉर्मूले के लिए स्क्वायर्स किए थे, क्योंकि फॉर्मूला इज पाइथागोरस थ्योरम इज दिस। Understood, ma'am. वो तो 60 और 11 ही है डायमेंशन, तो अब 142 पेरीमीटर आ गया। Okay. ठीक है ना। And then you multiply that with 2 because of the formula of the rectangle, right? यहाँ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला इज ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ, Okay. इसीलिए लेंथ एंड ब्रेथ यू आर एडिंग एंड देन मल्टीप्लाइंग बाय 2। Yes, ma'am. क्लियर है? Yes, आ ma'am. रहा बेटा, क्लियर है?
Yes, ma'am. Okay, question number 17. In triangle PQR, PQ is equals to QR. ये दोनों sides equal है, मतलब isosceles triangle है, right? Yes, ma'am. Angle Q 100 degree है, then angle R is equals to ये बताना है. अरे PQ is equals to QR. नहीं, एक मिनट बेटू. PQ is equals to QR है. ये side इसके equal है. And then angle Q is 100 degrees. तो आपको एंगल आर बताना है यहाँ पे. मैंने आपको क्या बताया, अगर बेस साइड्स इक्वल होती है तो बेस एंगल्स इक्वल, ये दो साइड्स इक्वल है तो इन्हीं की दोनों जो बेस साइड्स है वो इक्वल होंगी ना. तो इफ दिस इज एक्स, दिस इज आल्सो एक्स, 100 प्लस एक्स सॉल्व करोगे इक्वल्स टू 180, एक्स का वैल्यू 40 आ जाएगा. तो मैम 180 को माइनस 100 से 10 से करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे 2 से. एक्स प्लस 100 इज इक्वल्स टू 180 को सॉल्व करो. ओके मैम. तो मैम हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 100. मैम देन x इक्वल्स टू 100 वेट 80 डिवाइडेड बाय 2. अंडरस्टूड मैम. by 2 should be डन मैम. ओके बेटा जी, चले आगे. हो जाएगा अब ये क्वेश्चन सबका. एक्स का वैल्यू 40 आ जाएगा ना. Ma'am, हो गया. चलो गुड. अभी आप क्या करोगे, 17th क्वेश्चन तक मैंने यहाँ करा दिया, 25th तक होमवर्क में ट्राई करोगे. 25th तक, ठीक है. ट्राई करेंगे, राइट? ट्राई होमवर्क करना है, वो ट्राई. आगे कल निकल गए तो तो डिस्कस करेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में.